Another next concept is the moving averages. This is a indicator, a technical indicator called moving averages. आपने बहुत बार सुना होगा मूविंग एवरेज 50 डीएमए, 100 डीएमए, 200 डीएमए, 20 डीएमए, 5 डीएमए, ये सब आपने सुना होगा. इसका मतलब क्या है आज हम सीखेंगे. A moving average is a technical indicator that market analysts and investors may use to determine the direction of a trend. It sums up the data points of financial security over a specific period of time and divides total by number of data points to arrive at an average. It is called a moving average because it is continually recalculated based on the latest data price. मतलब 4 दिन का एवरेज कैलकुलेट हुआ, फिर थर्ड से लेकर फिफ्थ डे का एवरेज कैलकुलेट हुआ, फिर नेक्स्ट डे से लेकर अगले 4 दिन का कैलकुलेट हुआ. ऐसे एवरेज चेंज होता रहता है. मतलब इट कीप्स ऑन मूविंग एज पर द टाइम. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ मूविंग एवरेज. एक जगह स्थिर नहीं है. According to the data, the average keeps on changing and keeps on moving towards lower or higher, right? Analysts use the moving average to examine support and resistance by evaluating the movements of an asset price. A moving average reflects the previous price action movement of a security. Analysts or investors then use the information to determine the potential direction of the asset price. It's known as a lagging indicator. This is another important thing. There are two types of indicators. Technical indicators बहुत सारे, कम से कम 10, 15, 20 हम सीखेंगे. तो इंडिकेटर से पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. वन इज अ लैगिंग इंडिकेटर, वन इज अ लीडिंग इंडिकेटर. लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? लैगिंग इंडिकेटर में आपको इंडिकेटर एक ट्रेंड बताता है, लेकिन ट्रेंड थोड़ा शुरू हो जाता है, उसके बाद आपको उसका इंडिकेशन मिलता है थ्रू दैट टेक्निकल इंडिकेटर. और लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? जिसमें ट्रेंड चालू होने के पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, राइट? सो लैगिंग इंडिकेटर में क्या होगा? ट्रेंड चालू हो गया, उसके बाद आपको सिग्नल मिल रहा है कि ट्रेंड इज स्टार्टिंग एंड नाउ यू कैन टेक अ पोजीशन. और लीडिंग इंडिकेटर क्या हो गया? कि आपको ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ट्रेंड विल नाउ स्टार्ट. सो लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, जो हम लोग सारे लैगिंग इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, सारे लीडिंग इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेटर्स. तो लीडिंग इंडिकेटर्स, lagging indicators and oscillators are three types of technical analysis tools that we will study. After that, we'll study the chart patterns. There are many chart patterns like cup and handle and harmonic patterns and spring tops, double top, double bottom, and other patterns like ascending triangle, descending triangle. So we'll keep on studying that. So we'll first study the lagging indicators, then we'll study the leading indicators, and then we'll study the oscillators, right? So this is the first lagging indicator. It is moving averages. Types of moving averages. There are two types of moving average: simple moving average and exponential moving average. Simple moving average is just the average of 4 or 5 days, 6 days का average ले लेते हैं, उसका प्राइस को डिवाइड कर दीजिए 5 days का ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी से, और कीप ऑन चेंजिंग. मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे का एवरेज लिया, फिर सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे का एवरेज लिया, फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे का एवरेज लिया. ऐसे एवरेज लेते 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 वो एवरेज का चार्ट जो ग्राफ है वो चेंज होता जाता है, ऊपर या नीचे चेंज होता जाता है. उसकी जो लाइन है एवरेज की, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. दैट इज कॉल्ड अ सिंपल मूविंग एवरेज. बट हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यूज क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे बनेगा? कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज. ये थ्योरी जो है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा आफ्टर द क्लास एंड्स. आई जस्ट एक्सप्लेन द जिस्ट. व्हाट इज the main points in this exponential moving average. Exponential moving average needs to start somewhere, and simple moving average is used as the previous period's EM. It is obtained by taking the sum of the securities closing prices for the period in question and dividing the total number of periods. मतलब 2 divided by selected time period plus 1 is the formula for exponential moving average, right? So how is the current EMA calculated? Closing price minus EMA of previous time period into multiplier plus EMA of previous time period. So we don't need to go into the maths too much. Just for academic purpose, I've given you the maths. Those who want to study in detail can study here or study in Google the mathematical formula of exponential moving average.
if he is having interest in it. But for our purpose, we just understand there are two types of moving average: simple moving average and exponential moving average. Exponential moving average is better because it is a faster moving average and will give indication faster than the simple moving average. Simple moving average से fast indication देता है, simple moving average से fast indication देता है आपका exponential moving average, right? So exponential moving average, excuse me. Now, which moving average to use? As I have showed you in this chart, the long-term investor uses 200 period, 100 period, and 50 period moving average. The positional trader, which is for 1 month position, 2 months position, will take the 50 period, 21 period, and 14 period. And intraday trader will take a 14 to 20 period, 7 to 10 period, and 3 to 5 period moving average for determining positions, right? These are the this is the long term moving in average. This is the positional traders के लिए moving average, short term के लिए, medium term के लिए, और intraday के लिए ये periods हम लोग लेंगे for studying the moving averages. 4 और 20 मतलब 4 दिन का average या 20 दिन का average. 7 और 10 means 7 day का average or 10 day का average. Whichever you can choose whatever you want in intraday. Yes, it's or. Right? So now let's learn yes, 14 or 20, not 4 or 20, 14 or 20. 7 or 10, 3 or 5. Right. Thanks for correcting. Now let's learn how to draw moving average in a TradingView platform or investing.com, whichever you're using. Let's go to TradingView. Okay, I forgot to tell you something before that. What is the way we will find a trade in the moving averages? The 50-day moving average is called a, अगर long term हम लोग long term investor है समझिए. For example, you are a long term investor. Then what are the periods? Simple move, exponential moving average periods. We will study the exponential moving average. Simple moving average हम लोग नहीं पढ़ेंगे. Exponential is better than simple average. So अगर 50-day का exponential moving average होगा, 100-day का exponential moving average होगा, और 200-day का exponential moving average होगा. That is for the long term investor. तो 50-day का जो एवरेज है that is faster, मतलब उसकी लाइन है वो 100-day 200-day से फास्ट चलती है. तो 50 period day is the fast moving average, 100 period is the medium moving average, and 200 period moving average is the slow moving average. मतलब 200 period moving average अपने को इंडिकेशन स्लो देता है, 100-day का मूविंग एवरेज को इंडिकेशन और स्लो देता है, और 50-day का मूविंग एवरेज अपने को उससे स्लोनेस में इंडिकेशन देता है. तो 50 period will be the fast moving average, 100 will be the slow medium moving average, and 200 will be the fast slow moving average. Similarly, for positional trader, 14-day or 9-day period will be a slow, fast moving average, 20-day period will be a slow moving medium moving average, and 50-day period will be a slow moving average. Right? So what is the significance of this fast, medium, and slow moving average? The significance is I'm coming to the next slide. Okay. Fast moving average crosses above a slow moving average, then it's a buy signal. That means if you are a long-term investor, if the 50 period average line crosses the 100-day average line, उसके ऊपर से क्रॉस करता है, या 200-day का पीरियड से ऊपर से क्रॉस करता है, that is a buy signal, right? Similarly, when a fast moving average crosses below a slow moving average, मतलब 50-day moving average will cut the 200-day moving average, उसके below जाएगा, मतलब it's a bear sign, it's a bearish sign for the market, right? Now let's learn how these crossovers happen and how we can use them in trading. Very good question you raised. I will now show how to plot and how to use these indicators.
Let's go the candles. So this is a Nifty chart again. Now यहाँ पे indicators हैं, आप indicators पे click कीजिए. I suggest everybody to practice it right now. Please open a TradingView platform. I'm giving you guys 2 minutes to open TradingView platform and open the Nifty chart. जो laptop लेके बैठे हैं, please open your laptops and PC or desktops and open the TradingView platform so that you can practice. I'm giving you 2 minutes for opening this Nifty chart. You can go from the website also. You should no need for the app. अतुल जी, आप वेबसाइट पे जाके ये TradingView प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करके खोल सकते हैं. आपको ऐप से खोलने का जरूरत नहीं है. ऐप इज नॉट दैट प्रैक्टिकल. यस, यू प्लीज ट्राई. नेक्स्ट टाइम यू ट्राई. अभी आप देख लीजिए कैसे प्लॉट करते हैं. So everybody has opened the Nifty chart in TradingView platform. Please type yes in chat box. I'm waiting for everybody to open it. We need to practice this so that you have to use it on your own. Everybody else, I have got only 4 yeses. Okay, so now let's start. आप पहले इंडिकेटर्स में जाइए. यहाँ पे इंडिकेटर्स है. क्लिक ऑन द इंडिकेटर्स. यहाँ पे लिखिए एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा. ठीक है. आफ्टर टाइप एक्सपोनेंशियल यू विल सी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कीजिए एक बार, और एक बार क्लिक कीजिए, और एक बार क्लिक कीजिए. 3 बार क्लिक कर दिया आपने. देखिए लेफ्ट में आपके पास ये 3 आया. EMA 9, EMA 9, EMA 9 आया. एवरीबडी गॉट इट. 3 बार क्लिक किया आपने. पहले आप गए एक्सपोनेंशियल पे, एक्सपोनेंशियल टाइप किया, फिर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे गए. यहाँ पे 3 बार क्लिक किया. 1 2 3. एवरीबडी हैज डन दिस. प्लीज टाइप यस. सबने कर लिया ये. चैट बॉक्स में यस लिख के मेरे को प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. ओके संजय जी, अभिषेक जी, राहुल जी, शैलेश जी, थैंक्स अमन जी. नाउ फर्स्ट पहले वाले पे आइए. ये 3 बने दिख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में, राइट. माउस इज पॉइंटिंग हियर. डबल क्लिक ऑन द फर्स्ट वन. यहाँ पे इनपुट्स में जाइए. इनपुट्स में अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आप, तो लॉन्ग टर्म में पहला एवरेज क्या होगा? 50 डे का. तो लेंथ कर दीजिए 50, राइट. स्टाइल को, इसको हम लोग स्टाइल में यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन है. कलर को चेंज कर देते हैं ब्लैक, राइट. और यहाँ पे इसको मोटा कर देते हैं. ये लाइन पतली है, इसको विड्थ को इसको मोटा कर, डार्क हो जाएगा ये. तो ये डार्क, ये देखिए डार्क हो गया ना. यहाँ पतला था, यहाँ पे डार्क हो गया. तो कलर चेंज किया और ये चेंज किया.
और इनपुट्स में हमने लेंथ कर दिया 50. क्लियर? देन टाइप प्रेस ओके. एवरीबडी हैज डन दिस. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज. सबको समझ में आ गया? All others are clear? Please type yes. The more you practice, the more you will learn. Don't hesitate to ask. If you have stuck anywhere, don't hesitate to ask. This is practicing yourself. You are practicing now. So next वाले पे क्लिक कीजिए. पहले आपने ये बनाया, दूसरे वाले पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे इनपुट क्या करेंगे? 50 डे किया था, अब क्या करेंगे? 100 डे. लेंथ कर देंगे 100. स्टाइल कर दीजिए से ब्लू और यहाँ पे मोटा कर दीजिए इसको. राइट? ओके, ये बन गया. थर्ड में आइए, इनपुट्स में जाइए, इसको करिए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. स्टाइल को कर दीजिए रेड, उसको मोटा कर दीजिए. ठीक है? सो नाउ वी हैव द 50 डे मूविंग एवरेज, द 100 डे मूविंग एवरेज एंड द 200 डे मूविंग एवरेज. सबने बना लिया ये? Have you, Abhishek ji, Munmun ji, please unmute yourself. No, I will. Atul ji, मैं आता हूँ. क्या क्या implication में आता हूँ. Munmun ji, what is the doubt? Please ask. सर एक्चुअली मेरे मैकबुक में वो ढंग से खुल भी नहीं रहा है, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है. नहीं, क्यों नहीं खुल रहा आपका? मैं समझा नहीं. सर आप मुझे वो trading use कर इंडिकेटर्स रहे हैं वगैरह क्या? के ऑप्शन. जी, ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं. जी सर. फ्री अकाउंट है कि पेड अकाउंट है? नहीं सर, अभी फ्री है. हाँ, तो फ्री में नहीं खुलेगा, तो उससे अगर इंडिकेटर नहीं खुलेगा, आप जाओ investing.com. Go to investing.com. Not a problem. Everybody should learn. सबको समझ में आना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा. All doubts should be cleared. Investing.com में ट्रेडिंग व्यू है बट तीनों खुला है. डॉलर्स में पेमेंट मांग रहा है सर. हाँ, तो investing.com में जाइए आप लोग. तो फिर हम सब्सक्राइब कैसे करेंगे इसको? किसको? आपका ट्रेडिंग व्यू को. ट्रेडिंग व्यू को सब्सक्राइब. You will get options of pro, other options. But the payment is being asked in dollars. That's why the problem यस is सर. there. हाँ, मतलब हमारे यहाँ भी सर दिरहम. हाँ, जब आप करेंगे तो क्रेडिट कार्ड आप यूज करोगे तो आपका अमाउंट रुपी में डिटेक्ट होगा. डॉलर्स दिखा रहा है बट अमाउंट डिटेक्टेड इन रुपीज ओनली और योर लोकल करेंसी. कहाँ क्रेडिट कार्ड आप यूज करें. ठीक है. राइट? ओके. investing.com में आइए. जिसके पास अभी ट्रेडिंग व्यू नहीं है, investing.com में आइए. सेतु जी, मेरा फ्री है बट इसमें आ रहा है तीन ईएमए को मैं ले पा रहा हूँ एक साथ. किसमें? ट्रेडिंग व्यू में. आपने रजिस्टर किया था, पे किया था क्या? नहीं. तो आपने और कोई इंडिकेटर नहीं खोला है ना? नहीं, अभी तक और नहीं खुला है कुछ. ठीक है, तो उनको कोई प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल इशू हो रहा होगा. तो मुनमुन जी, यू ओपन दिस इन investing.com. आपने ओपन कर लिया है? जी. इसको यहाँ पे टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पे देखिए टेक्निकल चार्ट है. इसको क्लिक कीजिए. क्लिक कर दिया? जी सर. अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन का ऑप्शन आ रहा है. ये देखिए एक्सपैंड हो रहा है. यहाँ पे ये जो एरो है इसको एक्सपैंड कर दीजिए. ये चार्ट खुल जाए. जो खुला? सर एक बार फिर से बताएंगे प्लीज. हाँ, वापस बता रहा हूँ. पहले यू टाइप निफ्टी 50, यू गेट द निफ्टी 50. क्लिक देयर. अब नीचे आइए. यहाँ पे देखिए टेक्निकल चार्ट दिख रहा है आपको, जहां मेरा माउस पॉइंट है. इसको आपने क्लिक किया, एक और विंडो खुला जिसमें ये चार्ट आया. चार्ट दिख रहा है आप?
जी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इंडिकेटर है एक बना हुआ है, ये देखिए क्रॉस, ये क्रॉस बना जी हुआ है, एरोस, 4 एरो बने हुए हैं, एकदम लास्ट में जी। बॉक्स बना हुआ है ना हम्म। ये फुल स्क्रीन मोड है, इसको क्लिक कीजिए, देखिए फुल स्क्रीन हो जाएगा। हो गया। जी सर, हो गया। डन, दिस स्क्रीन इज कम। यस। नाउ हाउ टू गेट द कैंडल्स। यहाँ पे जाइए, कैंडल्स कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे कैंडल्स कर दीजिए। जी राइट। अब देखिए उसके साइड में जाइए एकदम, यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, जहाँ जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ माउस को, वहां पे इंडिकेटर्स का बॉक्स बना हुआ है, जी इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे टाइप कीजिए सर्च में एक्सपोनेंशियल। अब क्या आया? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, यहाँ तक आप पहुंच गए। जी सर। तो इसको 3 बार क्लिक कर दीजिए, 1 2 3, क्लिक। जी अब लेफ्ट साइड में देखिए 3 बना हुआ है, EMA 9, EMA 9, EMA 9 बना हुआ है। हाँ जी। राइट। अब मैंने सिखाया था आप लोगों को, इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कर लीजिए, फॉर्मेट। यहाँ पे डिफरेंट है, फॉर्मेट करना होगा। लेंथ लीजिए, लेंथ क्या है? 50 DMA, 50 लीजिए लेंथ। स्टाइल कर दीजिए इसको ब्लू या रेड, जो भी करना है आपको। अब मैंने ब्लैक लिया तो ब्लैक कर दीजिए इसको। और ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो ये 50 डे का बन गया, ये लाइन बन गई, 50 डे बन गई। राइट, कर लिया आपने ये? जी सर, मैं स्टाइल कर रही हूँ बस। हाँ, स्टाइल कर दीजिए, कुछ भी ब्लैक कर दीजिए, कुछ भी आपको जो करना है डिफॉल्ट कर दीजिए। जी उसके बाद दूसरे में आइए, क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कीजिए, इनपुट्स में जाइए, इसको कर दीजिए 100 डे। और कलर चेंज कर दीजिए, कलर कुछ और रख लीजिए, कलर कर दीजिए रेड या ग्रीन, जो भी आपको करना है। मैं ब्लू रख लेता हूँ, तो ब्लू कर दिया मैंने, इसको मैंने ब्लू कर दिया। और फिर हम लेंगे 200, फॉर्मेट, सेम इनपुट्स, लेंथ इज 200, स्टाइल आई विल टेक रेड। तो अब इससे हमारे, अपने को समझना क्या है, हाँ इसमें कैसे क्या समझना है अपने को अब? हाँ, मैं अभी समझा रहा हूँ, मैं इनको हेल्प कर दूं एक बार, फिर मैं आपको हाँ समझा रहा हूँ कि मेरा इम्प्लीकेशन क्या है इसमें। हाँ। जी सर। डन मुनमुन जी, जी आपका ये चार्ट खुल गया। राइट, जी सर। लेट्स प्रोसीड नाउ। ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का चार्ट, एक्सपोनेंशियल मूविंग का चार्ट है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं फ्रॉम मार्च 2020। Let me expand it once, then I will show you.
ये देखिए मार्च 2020 का जो है, इसके पास अगर हम आए, देखिए यहाँ पे ये है मार्च 2020 के पहले, फरवरी, राइट। आप सबको दिख रहा है फरवरी, यहाँ पे डेट है नीचे में, ये नीचे डेट आ रही है यहाँ पे, और ऊपर में यहाँ पे फिगर आ रहा है, यहाँ पे फिगर आ रहा है, राइट, ब्लैक में। तो मार्च 2020 के पहले जनवरी में ये जो ब्लैक लाइन थी, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये फास्ट मूविंग एवरेज बोलते हैं। 100 डे मूविंग एवरेज जो है वो स्लो मीडियम मूविंग एवरेज है, और 200 डे मूविंग एवरेज इज द स्लो मूविंग एवरेज इन द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। 200 डे मूविंग एवरेज इज अ वेरी सिग्निफिकेंट लाइन। अगर वो ब्रेक करता है कभी भी मार्केट, देन द लॉन्ग टर्म, द 2-3 years 4 years ट्रेंड विल चेंज।